Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second half of this lecture, week number 8 of the course Mobile Ad Hoc Network. In today's lecture, we are talking about the transport layer. In the first half, we talked about what is transport layer, what are the services that the transport layer provide to the application layer. Some of the services, for example, process-to-process communication, and encapsulation and decapsulation, multiplexing, demultiplexing, flow control, error control, and congestion control. We have discussed in the first half of this lecture. And then we talked a bit about some other topics that are related with the transport layer, and we talked until TCP and UDP. Regarding the TCP, I told you that TCP is a connection-less unreliable transport protocol. When we talk about the connectionless protocol, it means that if you are using a UDP, you will not need to establish a connection before sending the packet, before sending the data. Unreliable means that it will not provide you any guarantee about the transmission of the data. The data may arrive out of order, it may lost, there may occur errors within the data. There is no guarantee about the flow control, error control, congestion control while in the unreliable transport protocol. So a basic question is why a process will want to use a UDP if it is unreliable, and the answer is because of the minimum overhead required by the use of this protocol. Okay, so if your concern is not about the reliability, then obviously UDP is the best option to select. A UDP, like any transport layer protocol, will provide you a process-to-process communication. It will provide you encapsulation and decapsulation, multiplexing and demultiplexing. However, it will not provide you flow control, congestion control, and error control. In the connection-less protocol like UDP, there is no relation between the user datagrams. They are not number. There is no collaboration, coordination among the packets. So, and there is no connection establishment and no connection termination in the connectionless protocol. So, the main advantage of such protocol is the short request to a server and short overhead, less overhead, and it will not require a long wait for establishment of connection and then maintenance of the connection and termination of the connection. You do not need to worry about such things. So it provides actually less delay and less overhead. There are some situations where we actually prefer to use a connectionless protocol like UDP. Right, for example, if you are talking with someone by using a Skype conversation, then in that case your concern is not reliability, your concern is fast communication. For example, if some of the frames are missed ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, कुछ पिक्सल्स आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आए ड्यूरिंग वीडियो कॉल, सो दैट इज़ नॉट ए बिग डील, अ बिग इशू. आप उसको जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं, राइट. सो उस केस में UDP को आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन फॉर एग्जांपल अब अगर आप नेट से कोई टेक्स्ट फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और वहाँ पे आप UDP को यूज़ कर रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट एन ऑब्वियस सोल्यूशन बिकॉज देयर वी नीड रिलायबिलिटी. क्यों? अगर टेक्स्ट फाइल में आपके कुछ बिट्स मिस कर जाए या करप्ट कर जाए या चेंज हो जाए ड्यूरिंग डाउनलोडिंग, so that is going to affect the whole file, the whole text file. So in that case reliability is important, so UDP is not a suitable transport layer protocol in such scenario. इसका UDP का जो सेगमेंट है उसके जो फील्ड्स हैं वो कम है, दैट इज़ वाई उसका ओवरहेड भी कम है. और कुछ सिनारियोस हैं जहाँ पे हम प्रेफर करते हैं UDP के यूज़ को. दो मैंने आपको बता दिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर एग्जांपल हो गई, या इसके अलावा एक प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं TFTP, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल.
तो वहाँ पे हम UDP को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा SNMP मैनेजमेंट के लिए एक प्रोटोकॉल है, रूटिंग से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है, रिप है, या इंटरैक्टिव कुछ रियल टाइम एप्लीकेशन है, वहाँ पे हम UDP को यूज़ करते हैं। वाइल ऑन द अदर साइड जो आपके पास TCP प्रोटोकॉल है, that is actually a connection oriented and reliable transport layer protocol. Okay, TCP जो है वो जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे, एक्नॉलेजमेंट, टाइमर्स, सीक्वेंस नंबर, एरर कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट वगैरह वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो TCP इसको फॉलो करता है। सो UDP की तरह ये भी प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे भी है। हाउ एवर इट विल ऑफर यू रिलायबल सर्विसेज। जब हम बात करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस की, सो वी एक्चुअली रिफर टू द प्रोसेस के डेटा को सेंड करने से पहले कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश होगा, एंड दैट इज़ लाइक अ 3 फेज प्रोसेस। ठीक है, लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द TCP इस्टेब्लिश होगा, फिर उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र होगा, एंड देन कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट होगा एट द एंड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, राइट। सो TCP हमारे पास जो है वो रिलायबल प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट होता है, डेटा ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद जो है कनेक्शन को हम टर्मिनेट करते हैं। इसके अलावा सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, टाइमर्स, ये इसको यूज़ करता है। एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज़्म, इसके अलावा बफर्स को ये यूज़ करता है वगैरह वगैरह। सो TCP की जब हम बात करते हैं तो कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट को जो हम टर्मिनोलॉजी जिससे हम इसको पहचानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 3-वे हैंडशेक मैकेनिज़्म। Connection establishment in TCP is actually called a 3-way handshake process, and the process starts with a server. जो सर्वर प्रोग्राम है वो TCP को बताएगा कि hey, I am ready to accept a connection. That is called passive open. डिटेल्स में हम नहीं जाते, बट 3-वे हैंडशेक में क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, फिर डेटा ट्रांसफ़र होता है, एंड देन द कनेक्शन इज़ टर्मिनेटेड. सो देयर इज़ अ स्टैंडर्ड वे which is followed by the TCP for transmission of data between two transport layer protocols. ओके, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं, एंड देन we are going to study congestion control of TCP in more details, right? Okay. TCP का जो प्रोटोकॉल है it actually uses different policies to handle congestion in the network. अब कंजेशन किसे कहते हैं, इस पे हमने फर्स्ट हाफ में डिटेल्स से डिस्कशन की थी कि जो नेटवर्क की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड अगर आप नेटवर्क पे डाल रहे हैं तो कंजेशन जो है वो अकर होगी। अब इस कंजेशन को हमने डिटेक्ट भी करना है, राइट, और उस डिटेक्शन के लिए TCP कुछ पॉलिसीज़ को यूज़ करता है। उन पॉलिसीज़ को अभी हम पढ़ेंगे, बट फर्स्ट लेट मी टेल यू के व्हाट इज़ कंजेशन विंडो। TCP में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक को हम कहते हैं रिसीवर विंडो, which is represented by RWND. WND for window, R for receiver. Okay? यानी जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो जो रिसीवर होता है वो सेंडर को अपनी कैपेसिटी के बारे में इन्फॉर्म करता है by using a variable which is called receiving window, right? Hey, this is my capacity, you will have to follow this. अगर आप इससे एक्सीड करेंगे तो मेरे लिए डेटा को हैंडल करना वो पॉसिबल नहीं है। और ये विंडो साइज़, ये रिसीविंग विंडो साइज़ जो है ये रिसीवर सेंडर को इन्फॉर्म करता है बाय एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ सेगमेंट। हर एक सेगमेंट जो ये सेंड करता है टुवर्ड द रिसीवर, उसमें ये उसको अपने विंडो साइज़ के बारे में बताता है इन द अपोजिट डायरेक्शन। हाउएवर सेंडर और रिसीवर के अलावा
जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, सो वी आल्सो नीड टू डील विद द इंटरमीडिएट डिवाइसेस। जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं वहाँ पे इंटरमीडिएट बफर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रूटर, वहाँ पे भी कंजेशन पॉसिबल हैं। ठीक है, जिस तरह एंड जो आपके पास डिवाइस हैं या होस्ट हैं वहाँ पे कंजेशन पॉसिबल है, इसी तरह इंटरमीडिएट डिवाइसेस पे भी कंजेशन अकर हो सकती है। सो टू कंट्रोल द नंबर ऑफ सेगमेंट्स टू ट्रांसमिट, यानी कंजेशन को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, बाय कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो कि हम ट्रांसमिट करते हैं, उसको अगर आप कंट्रोल करेंगे ऑब्वियसली यू विल कंट्रोल द कंजेशन। तो इस इंटरमीडिएट कंजेशन को हैंडल करने के लिए टीसीपी will use another variable, and that is called congestion window, and that is represented by C, W and D. C for congestion and W and D for window. So we have two variable, receiver window and congestion window. Okay, receiver window congestion at the end devices, and congestion window congestion at the intermediate devices. So ये दोनों जो variable हैं, congestion window and receiver window, together it will define the size of the send window in TCP. या आप कह सकते हैं कि congestion को कंट्रोल करने के लिए we have to consider the minimum of these two, यानी इन दोनों में से जो मिनिमम होगा आप उसको फॉलो करेंगे ताकि कंजेशन इंटरमीडिएट डिवाइसेस पे भी अकर ना हो और कंजेशन जो है वो एंड डिवाइसेस पे भी अकर ना हो। सो द मिनिमम, द एक्चुअल विंडो साइज इज एक्चुअली द मिनिमम ऑफ द रिसीवर विंडो साइज एंड द कंजेशन विंडो साइज। अब कंजेशन डिटेक्शन पे मज़ीद हम बात नहीं करते, इस पे हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि टीसीपी में अगर रिलायबल प्रोटोकॉल है फॉर एग्जांपल टीसीपी, तो वो जो है कंजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो किस तरह हम कंजेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। जो आपके पास जो टीसीपी सेंडर है, इट एक्चुअली यूजेस टू इवेंट्स टू डिटेक्ट कंजेशन। दो चीज़ों से आप कंजेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम आउट एंड द सेकेंड वन इज एक्नॉलेजमेंट्स। ठीक है, टाइम आउट, जब सेंडर कोई पैकेट कोई सेगमेंट सेंड करता है तो टाइमर स्टार्ट कर देता है। अगर टाइमर एक्सपायर हो जाए और कोई रिस्पॉन्स, कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीवर की तरफ से ना मिले, दिस इज़ एन इंडिकेशन कि कंजेशन हैज़ अकर्ड। टीसीपी को पता चल जाता है कि कंजेशन हैज़ अकर्ड, तो टाइम आउट इवेंट की वजह से कंजेशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, रिसीविंग 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। फॉर एग्जांपल सेंडर ने 3 पैकेट सेंड किए हैं, 3 सेगमेंट सेंड किए हैं, 1 2 3, राइट, और रिसीवर जो है उसको पैकेट 1 मिल गया, तो वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा फॉर पैकेट 2, हे आई गॉट सेगमेंट 1, सेंड मी सेगमेंट 2 नाउ। अब एक दफ़ा एक्नॉलेजमेंट मिल गई सेंडर को ऑफ पैकेट 2, दूसरी दफ़ा मिल गई, तीसरी दफ़ा मिल गई, दिस इज़ एन इंडिकेशन कि जो पैकेट इसने सेंड किया था वो रिसीवर को नहीं मिला बिकॉज ऑफ कंजेशन। तो अगर मल्टीपल डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट किसी पैकेट की सेंडर को मिल जाए फ्रॉम द रिसीवर साइड, दैट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द कंजेशन इन द नेटवर्क। सो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे हम कंजेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट वन टाइम आउट एंड द सेकेंड वन 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर साइड। अब कुछ पॉलिसीज़ हैं and they are very important. The first policy is called slow start, इनको आप algorithms भी कह सकते हैं। The second one is called congestion avoidance, and the third one, which is a new one, that is called fast recovery. तो one by one इन policies को हम देखते हैं। Let us start with the slow start. स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम में क्या होता है, जो आपके पास कंजेशन विंडो है जिसको हम CWND कहते हैं। स्लो स्टार्ट मीन यू हैव टू स्टार्ट द इनिशियल वैल्यू, यू हैव टू गिव
a very small value to this initial congestion window, and in our case that is going to be 1. So हम start करते हैं with the congestion window value is equal to 1. 1 MSS is a terminology जिसको हम मैक्सिमम सेगमेंट साइज कहते हैं. इन शॉर्ट मैं इसको सेगमेंट साइज ही कहूँगा. सो द सेगमेंट साइज इज इक्वल टू 1 in case of a slow start. However, we will increase this value each time an acknowledgement arrives, right? For example, in this scenario, you have a client and you have a server. Congestion window size हम क्या रख रहे हैं 1. So we have sent a packet toward the server and then we receive an acknowledgement for the same packet, right? इस time को हम कहते हैं RTT, round trip time. The time between sending a packet and receiving an acknowledgement for that packet is called round trip time. आपने कोई पैकेट सेंड किया एंड देन उसका रिस्पॉन्स जब आपको मिल जाए, सेंड करने के बाद रिस्पॉन्स रिसीव होने तक का जो टाइम है उसको हम कहते हैं RTT, राउंड ट्रिप टाइम. सो वी हैव कंजेशन विंडो ऑफ 1. इस लो स्टार्ट को हम एक्सपोनेंशियल इंक्रीज भी कहते हैं. व्हाई इट इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज? हियर इज द आंसर. नेक्स्ट राउंड में द साइज इज गोइंग टू बी 2, राइट? नेक्स्ट में आपने 2 पैकेट सेंड किए एंड देन यू रिसीव एक्नॉलेजमेंट फॉर बोथ ऑफ देम. सो द साइज ऑफ द विंडो इज नाउ 4. देन यू हैव टू सेंड द 4 पैकेट्स and then you receive acknowledgement for all of them. Then you have to increase the size. This time the size is 8. So here we are dealing with exponential growth. 1, then 2, then 4, then 8, then 16, then 32, then 64 and so on. So the start is slow but the increase is exponential, right? यानी हम बहुत जल्दी जो है वो number of segments जो कि हम send कर रहे हैं उसके रेट को हम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे हैं. इसका फ़ायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, वो भी हम देखते हैं. सो इस स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम में जो कंजेशन विंडो है, जो साइज है उसका, दैट इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड अराइव्ड. और इसको आप इस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं. हे, इफ एन एक्नॉलेजमेंट अराइव्स then you have to increase the congestion window size. अगर आप राउंड ट्रिप टाइम को देखें, सो स्टार्ट में हमने कंजेशन विंडो की साइज क्या रखी थी 1. दैट इज इक्वल टू 2 raised to power 0. आफ्टर 1 राउंड ट्रिप टाइम the value of the congestion window is actually 2 raised to the power 1. After second the value is 4 raised to the power 2. And after third round trip time the value of congestion window is 8, which is actually 2 raised to the power 3. So here we have an exponential growth. इस अप्रोच को हम एग्रेसिव अप्रोच कहते हैं, जहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो आप सेंड कर रहे हैं वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हैं. So the growth is exponential and this approach is called aggressive approach. And that is not a good news for us. Aggressive approach is not good. Okay. Now, इस लो स्टार्ट एल्गोरिथम में जो कंजेशन विंडो का जो साइज है इट एक्चुअली इंक्रीज एक्सपोनेंशियली. कब तक? वी नीड टू डिफाइन अ लिमिट एंड उस लिमिट को हम कहते हैं स्लो स्टार्ट थ्रेशहोल्ड और SS थ्रेश, राइट? इन शॉर्ट SS थ्रेश. यानी कब तक आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को कंटिन्यू रखेंगे? जब तक आप इस वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते. और ये वैल्यू सेंडर और रिसीवर जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो जैसे ही इस वैल्यू को आप पहुंच जाए, यू हैव टू चेंज द स्पीड, यू हैव टू ब्रेक, राइट? इसकी एग्जांपल अभी हम देखेंगे, बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड, लेट मी रिवाइज कि कंजेशन पॉलिसीज़ या एल्गोरिथम्स 3 हमारे पास अवेलेबल हैं, और भी हैं बट दे आर फेमस.
द फर्स्ट वन जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्लो स्टार्ट, जिसको हम एक्सपोनेंशियल इंक्रीज भी कहते हैं. व्हाई इट इज स्लो स्टार्ट? बिकॉज यहाँ पे जो कंजेशन विंडो साइज इनिशियली हम पुट, उसको जो वैल्यू हम देते हैं, दैट इज ओनली 1. Why it is exponential growth? Because after every successful acknowledgement that we receive from the receiver side, we increase the size of the contention congestion window exponentially. 1, then 2, then 4, then 8, then 16, then 32, and then 64. So here, congestion window in this algorithm, that is actually a function of the number of acknowledgements that arrived. और इसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं लाइक दिस. इफ़ वी रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट, द कंटेंशन विंडो इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 1 एवरी टाइम. सो राउंड ट्रिप टाइम में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, दैट इज गोइंग टू बी एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. और इस अप्रोच को हम एग्रेसिव अप्रोच कहते हैं. इट इज़ नॉट ए गुड अप्रोच. और इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रोकने के लिए वी हैव टू डिफाइन अ थ्रेशहोल्ड वैल्यू, जिसको हम कहते हैं स्लो स्टार्ट थ्रेशहोल्ड और एस थ्रेश इन शॉर्ट. जब ये वैल्यू रीच कर जाए, वी नीड टू स्टॉप द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. जो सेकंड पॉलिसी है, जो सेकंड एल्गोरिथम है, उसको हम कहते हैं कंजेशन अवॉइडेंस. जिस तरह पहले को हमने एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कहा था, इसको हम एडिटिव इंक्रीज कहते हैं. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कंजेशन अवॉइडेंस का, इट फोकसेस के कंजेशन को अवॉइड किया जाए बिफोर इट एक्चुअली हैपन्स. फर्स्ट केस में कंजेशन अकर हो जाए, फिर हम उसको डील करते हैं. यहाँ पे कंजेशन को हम अकर होने से पहले हैंडल कर लेते हैं, अवॉइड कर लेते हैं. ओके, सो उसके लिए वी हैव अ प्राइस that we need to pay, and that is के we must slow down the exponential growth. फर्स्ट केस में आपने देखा कि वहाँ पे कंजेशन विंडो की साइज़ को हम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको एडिटिवली इंक्रीज़ करेंगे, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हमने रोकना होगा इन ऑर्डर टू अवॉइड कंजेशन बिफोर इट हैपन्स. तो यहाँ पे जो कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिथम है, it actually increases the congestion window size additively instead of exponentially. दोनों में ये डिफरेंट है. किस तरह? फॉर एग्जांपल आपके पास जो कंजेशन विंडोज, लेट्स सपोज इट रीचेस द स्लो स्टार्ट थ्रेशहोल्ड, जिसको हम एस थ्रेश कहते हैं. तो फॉर एग्जांपल उस केस में आपके पास जो कंजेशन विंडो का जो साइज़ है वो आई के इक्वल है. आई इज़ अ वेरिएबल, ये 1 2 3 4 कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है. तो जैसे ही ये वैल्यू मिल जाए, देन यू हैव टू स्टार्ट द एडिटिव इंक्रीज और द कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिथम. यानी स्टार्ट में आप स्टार्ट ले फर्स्ट स्लो स्टार्ट से, लेकिन जैसे ही आप थ्रेशहोल्ड पे पहुंच जाए, देन यू हैव टू चेंज टू कंजेशन अवॉइडेंस स्टेप और एडिटिव इंक्रीज. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं द करंट कंजेशन विंडो साइज इज़ 4. सो यू सेंड 4 पैकेट्स. Acknowledgement of for the 4 packets has been arrived. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं the size has been changed to i+1, यानी 4+1 is now 5. Now you send 5 packets, and here after second round trip time, now you increase the size of the congestion window by 2 and then by 3 and so on. So here we see additive increase. 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9 and then 10. So यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस एल्गोरिथम में जो कंजेशन विंडो का जो साइज़ है, there is also a function of the number of acknowledgement that we receive from the receiver, right? However, the increase is different. यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई acknowledgement arrive हो जाए, then the congestion window size is equal to congestion window प्लस 1 डिवाइडेड बाय कंजेशन विंडो. इट मीन्स कि आप हर एक एक्नॉलेजमेंट को जो है वो काउंट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने 5 पैकेट्स सेंड किए हैं, तो 5 के 5 एक्नॉलेजमेंट्स आना ज़रूरी है बिफोर इंक्रीमेंटिंग द साइज ऑफ द कंजेशन विंडो. सो हेयर 1 बाय कंजेशन विंडो मीन के ओनली पोर्शन ऑफ द सेगमेंट दैट यू हैव सेंट. तो यहाँ पे अगर आप देखें इस अप्रोच को, आफ्टर फर्स्ट राउंड ट्रिप टाइम
the value of the condition window is I plus 1, then after second the value is I plus 2 and then I plus 3. So this is additive approach. इस mechanism को हम कहते हैं conservative. The first one was aggressive approach, जहाँ पे हम exponentially growth कर रहे हैं, and this one is conservative, जहाँ पे हम additive growth कर रहे हैं. So the first one is यहाँ पे जो size है वो बहुत तेज़ी से हम बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे हम size को बहुत slowly जो है वो increase कर रहे हैं. So this is also a problem. We do not need aggressive approach, we do not need conservative approach, we need something intermediate, right? And for that the third approach is there, which is called the fast recovery approach. जो first two algorithms हैं, they are important for TCP, while the third one is optional. जो latest version है TCP के वो इसको implement करते हैं, जो पुराने version है वो इसको implement नहीं करते. So that is like an optional thing. Old version of TCP did not use it, but the new version they try to use the fast recovery approach as well. यहाँ पे the approach is a bit different from the second one, which is the condition avoidance approach, and this is by the number of duplicate acknowledgement that we receive here. It starts when 3 duplicate acknowledgements arrive, right? So in fast recovery, अगर आपको 3 duplicate acknowledgement receive हुई from the receiver, it will interpret a slight congestion in the network. So congestion avoidance algorithm की तरह ये भी हमारे पास additive increase है, exponential नहीं है, right? But it increases the size of the congestion window only when a duplicate acknowledgement arrive. यहाँ पे सिर्फ acknowledgement अगर arrive हो जाए तो हम congestion window को increase करते हैं. यहाँ पे we only increase if it is a duplicate acknowledgement, right? So this is the third algorithm. अच्छा, अब policies की अगर हम बात करें कि TCP में या TCP किस तरह डिसाइड करता है कि मैंने जो है वो स्लो स्टार्ट लेना है, इस एल्गोरिथम को मैंने फॉलो करना है, या जो है कंजेशन अवॉइडेंस पे जाना है, या कब मैंने स्विच करना है फ्रॉम स्लो टू कंजेशन अवॉइडेंस, और व्हेन आई नीड टू स्विच फ्रॉम कंजेशन अवॉइडेंस टू फास्ट रिकवरी एल्गोरिथम. ठीक है, किसको मैंने फॉलो करना है, कब मैंने स्विच करना है फ्रॉम वन अप्रोच टू अनदर. So to answer this question, we need to refer to some versions of the TCP, right? इन versions को हम actually हमारे पास और भी versions हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो हैं TCP Tahoe, TCP Reno and TCP New Reno. These three. इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्जन है दैट इज़ रीनो, बट जो क्लासिकल है TCP सॉरी इट इज़ TCP Tahoe. सो व्हाट इज़ TCP Tahoe? थ्योरी से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना दैट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट आई विल ट्राई टू मेक द थ्योरी एज सिंपल एज पॉसिबल. लेकिन अगर थ्योरी आपको समझ ना आए तो आई एम श्योर कि जो इसका जो ग्राफ है उससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. सो TCP Tahoe, it is actually the early TCP version, right? It uses only 2 algorithms in the congestion policy, the slow start and the congestion avoidance. यानी जो थर्ड है जिसको हम फास्ट रिकवरी कहते हैं, जो मैंने कहा कि ऑप्शनल है, ये उसको यूज़ नहीं करता. ये सिर्फ फर्स्ट 2 पॉलिसीज़ को या एल्गोरिथम्स को यूज़ करता है. अब किस तरह ये स्टार्ट लेता है और किस तरह ये स्विच करता है, लेट अस सी. इट ट्रीट्स द 2 साइंस. ओके, कंजेशन डिटेक्शन के लिए 2 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, टाइम आउट एंड 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स. दोनों इसके लिए is a sign कि congestion has occurred in the network and both are equal.
ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि कंजेशन टाइम आउट की वजह से है या 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट की वजह से। कंजेशन है तो है, दोनों इसके लिए इक्वल हैं। इट विल ट्रीट बोथ द डिटेक्शन ऑफ कंजेशन इन द सेम वे। अब किस तरह ये स्टार्ट लेता है? इट एक्चुअली स्टार्ट्स द स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम। स्टार्ट में ये क्या लेगा? कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करेगा? स्लो स्टार्ट। और स्लो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि वी नीड टू सेट अ वैल्यू बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। जो स्लो स्टार्ट थ्रेशहोल्ड जो वैल्यू है वो ये डिसाइड करते हैं। इट इज़ एक्चुअली अ मल्टीपल ऑफ द एमएमएस। और स्लो स्टार्ट है तो जो करंट वैल्यू होगी, जो बिगेनिंग में, जो स्टार्ट में जो कंजेशन विंडो की वैल्यू होगी, वो क्या होगी? 1 होगी, राइट? ओके, अब अगर किसी पॉइंट पे कंजेशन डिटेक्ट हो जाए, रिमेंबर दो चीज़ों से कंजेशन अगर हो सकती है, टाइम आउट या डुप्लीकेट अराइवल ऑफ 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। दोनों में से कोई भी रीज़न हो, कंजेशन डिटेक्ट हो जाए तो टीसीपी क्या करेगा? इट विल इमीडिएटली इंटरप्ट दिस एग्रेसिव ग्रोथ, जो स्लो स्टार्ट का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसको स्टॉप कर लेगा, एंड इट विल रीस्टार्ट अ न्यू स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम। ठीक है, ये क्या करेगा? न्यू स्टार्ट लेगा, मतलब कि जो एमएमएस की वैल्यू है दोबारा उसको सेट करेगा टू 1, राइट? एक काम। दूसरा काम ये क्या करेगा? जो इसने थ्रेश होल्ड पहले से डिफाइन किया था उसको ये हाफ पे ले आएगा ऑफ द करंट कंजेशन विंडो। तो ये दो काम करेगा जब कंडीशन डिटेक्ट हो जाए इन द नेटवर्क। अगर कोई कंजेशन डिटेक्ट नहीं होती तो ये अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को कंटिन्यू रखेगा। कब तक कंटिन्यू रखेगा? जब तक ये अपने थ्रेशहोल्ड वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही ये थ्रेशहोल्ड वैल्यू पे पहुंच जाए, इट विल लर्न्स के जो मैक्सिमम वैल्यू थी, जो एम्बिशन मेरे लिए सेट था, उसको मैं पहुंच गया हूँ। इट शुड नॉट कंटिन्यू एट दिस स्पीड। इसका मतलब है कि अब इस स्पीड को मैं कंटिन्यू नहीं रख सकता। So it moves to the congestion avoidance state. Now this is the point जहाँ पे ये move करेगा from slow start to congestion avoidance algorithm, and from there it will continue in its state. जिस तरह मैंने आपको बताया, थ्योरी की अगर समझ नहीं आई तो इस डायग्राम को अगर आप समझ ले तो you will actually understand so many things. I will try to explain this figure. Okay, एक्सिस को देखें, you have the congestion window, size of the congestion window in MSS segments starting from 0. For example, you have 16, and on the x-axis you have the round trip time starting from 0 and then moving on. यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, SS stand for the first algorithm, first policy, that is the slow start. CA stand for congestion avoidance. चूँकि ये दो को यूज़ करता है तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो एल्गोरिथम्स ही नज़र आ रहे हैं, स्लो स्टार्ट, कंजेशन अवॉइडेंस, स्लो स्टार्ट एंड कंजेशन अवॉइडेंस। लेजेंड्स को अगर आप देखें तो you have 3 duplicate acknowledgement event, you have a timeout event, and you have a threshold value. 3 duplicate is represented by this, timeout represented by this, and threshold represented by TH. Okay, so सबसे पहले TCP टाहो सबसे पहले क्या करेगा? स्लो स्टार्ट। स्लो स्टार्ट में क्या होगा कि जो कंजेशन विंडो का जो साइज है उसको हम कंसिडर करते हैं 1। सो वी आर हेयर 1 से हमने स्टार्ट लिया, एक पैकेट हमने सेंड किया, नेक्स्ट टाइम इज़ 2, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, देन 2 के बाद क्या है? 4 है, एंड देन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो 4 के बाद हम कहाँ पे आएंगे? 8। अब जैसे ही आप 8 पे पहुँचते हैं, an event occurs here at this point, and the event is timeout event. Timeout event is an indication that the network is congested.
कंजेशन है तो हमने क्या करना होगा, स्पीड को कम करना होगा। पैकेट हमारे लॉस हो रहे हैं, सो इट्स टाइम टू टेक अ डिसीजन टू स्लो डाउन द स्पीड। तो ये जो टीसीपी का वर्जन है, टाइम आउट और डुप्लीकेट, 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, इसके लिए दोनों सेम हैं। तो जैसे ही टाइम आउट इवेंट अकर हुआ, ये क्या करेगा, 2 काम करेगा। पहला काम, अ न्यू स्लो स्टार्ट। स्लो स्टार्ट में हम कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, कंजेशन विंडो को सेट करते हैं दोबारा 1 पे। इट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी। सेकंड काम हम क्या करेंगे, जो थ्रेश होल्ड वैल्यू है उसको भी हम रीसेट करेंगे। किस तरह, जो आपके पास करंट वैल्यू है जहाँ पे आपका टाइम आउट अकर हुआ है, इट इज़ 8, उसके हाफ, सो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4, सो द न्यू थ्रेश होल्ड वैल्यू इज़ 4, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं द थ्रेश होल्ड वैल्यू नाउ इज़ 4। जिस पॉइंट पे कंजेशन अकर हुई है उसके हाफ को आप थ्रेश होल्ड वैल्यू बनाएंगे। अगेन यू स्टार्ट अ स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम, 1 है, सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है 1 से 2 एंड देन 2 से 4। अब देखें, हमने थ्रेश होल्ड वैल्यू को अचीव कर लिया है, कंजेशन अकर नहीं हुए, टाइम आउट नहीं है, 3 डुप्लीकेट पैकेट्स एक्नॉलेजमेंट हमें नहीं मिले, but we have reached to the threshold value, that is the highest ambition. अब यहाँ पे ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, it will switch over to the congestion avoidance state। अब ये दूसरे एल्गोरिथम को फॉलो करेगा, और वो एल्गोरिथम क्या है, कंजेशन अवॉइडेंस है। अब कंजेशन अवॉइडेंस में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी, एडिटिव ग्रोथ होगी। सो यू हैव 4, then 5, then 6, then 7. You see, this is the conservative approach. Then 8, 9, 10, 11, 12. अब at this point congestion occurs again, लेकिन इस दफ़ा टाइम आउट की वजह से कंजेशन अगर नहीं हुई। कंजेशन अगर हुई, हमें कैसे पता चला, हमें रिसीवर से डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मिली 3 times for the same packet, which is an indication that congestion has been occurred in the network. Now it's time to switch back to the slow start algorithm। 2 काम हम करेंगे। सबसे पहले स्लो स्टार्ट में हम जो कंजेशन विंडो का साइज़ है वो क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। दूसरा काम, थ्रेश होल्ड वैल्यू सेट करना। इस वक्त हम कहाँ पे हैं, 12 पे हैं। सो द मीडियम divided by 2, so 12 divided by 2 you will get 6, so the threshold value now is 6, right। so again slow start है, exponential growth होगी 1 से 2, 2 से 4 and 4 से then we have to go to 8। लेकिन 8 तक पहुंचने से पहले जैसे ही हम 6 पे आए, यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें पता चला कि दिस इज़ आवर अपर लिमिट, दिस इज़ द थ्रेश होल्ड वैल्यू, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, जाऊँगा तो कंजेशन अकर होगी। तो जैसे ही ये थ्रेश होल्ड वैल्यू पे दोबारा आएगा, इट विल शिफ्ट टू द कंजेशन अवॉइडेंस स्टेट अगेन। वहाँ पे अब क्या होगी, एडिटिव इंक्रीज, कंजर्वेटिव अप्रोच दोबारा ये फॉलो करेगा। सो हियर वी आर गोइंग to follow the linear style again। so 6 से हम 7 पे आएंगे, then 8 पे, then 9 पे and then 10 पे। so this is the classic TCP tau algorithm। यहाँ पे हम 2 पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, स्लो स्टार्ट एंड कंजेशन अवॉइडेंस। स्लो स्टार्ट में हम सॉरी कंजेशन विंडो की साइज़ को 1 रखते हैं एंड देन हम उसको जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करते हैं। टाइम आउट अगर हो जाए या 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मिल जाए, दोनों केसेस में हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू को डिवाइड बाय 2 करना है ऑफ द करंट वैल्यू, और हमने जो है वो वापस आना है स्लो स्टार्ट पे। लेकिन अगर आप थ्रेशोल्ड वैल्यू को रीच करते हैं तो उस केस में यू हैव टू स्विच फ्रॉम स्लो स्टार्ट टू कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिथम, राइट। So this was the first case। Another TCP version is called TCP Reno, which is a new version of the TCP,
एंड देयर इज़ मच मोर फेमस, इसकी परफॉर्मेंस प्रीवियस से अच्छी है. इट एक्चुअली एडेड अ न्यू स्टेट टू द कंजेशन कंट्रोल. और वो स्टेट क्या है जो ऑप्शनल है हमारे पास, फास्ट रिकवरी स्टेट, उसको भी ये इम्प्लीमेंट करता है. एक चीज़. दूसरी चीज़ रीनो में क्या है कि इसके लिए कंजेशन की जो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, टाइम आउट एंड अराइवल ऑफ 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, दे बोथ आर डिफरेंट. इट विल रिएक्ट टू बोथ टाइप्स ऑफ कंजेशन डिफरेंटली. अगर कंजेशन टाइम आउट की वजह से है, इट विल सेलेक्ट वन ऑप्शन, ये एक डिसीजन लेगा. और अगर कंजेशन 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स के मिलने की वजह से है, इट विल टेक अनदर डिसीजन. सो इसके लिए दोनों स्टेट्स ऑफ कंजेशंस दे आर डिफरेंट. सो रीनो में दो चीज़ें हैं. एक तो ये फास्ट रिकवरी स्टेट को इंट्रोड्यूस करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, और उसके लिए कंजेशन के जो दो स्टेट्स हैं, टाइम आउट एंड अराइवल ऑफ 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, दे आर डिफरेंट. इस वर्जन में अगर टाइम आउट अकर हो जाए तो इट विल एक्चुअली मूव टू द स्लो स्टार्ट स्टेट, राइट. और अगर 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मिल जाए तो ये कहाँ पे आएगा, फास्ट रिकवरी स्टेट पे आएगा. और उसमें रिमेन इट विल देयर as long as more duplicate acknowledgement arrive. Sorry. अच्छा, एक और चीज़ इसमें, द फास्ट रिकवरी स्टेट इज अ स्टेट समवेयर बिटवीन द टू. एक तो ये चीज़ हो गई, स्लो स्टार्ट एंड कंजेशन अवॉइडेंस के दरमियान में एक चीज़ है, एक चीज़ होगी, देयर इज अ फास्ट रिकवरी स्टेट. ओके, इट विल एक्ट्स लाइक स्लो स्टार्ट इन विच जो कंजेशन विंडो है, it will grow exponentially, but congestion window will start with the value of current threshold plus 3 mms instead of 1. This is the beauty. वहाँ पे जब हम स्लो स्टार्ट लेते हैं तो हम हमेशा 1 से स्टार्ट लेते हैं. यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट नहीं लेंगे. जो करंट वैल्यू होगी उसके साथ SSH की जो वैल्यू, SS थ्रेश की जो वैल्यू होगी, उसके साथ हम +3 को ऐड करेंगे इन ऑर्डर टू गेट अ न्यू वैल्यू फॉर द कंजेशन विंडो. ओके, सो थ्योरी से अगेन इसको एक्सप्लेन करना इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द सेम फिगर. ओके, ओके, TCP रीनो लेजेंड्स. एक्सिस को समझे. Y axis is again the congestion window size starting from 0 up to 16. X axis we have the round trip time. Here you see the different algorithms. यहाँ पे आप देख सकते हैं slow start, congestion avoidance, and this is the third one जो कि पिछले में नहीं था, fast recovery, right, जो कि इसको भी ये यूज़ करेगा. And then we also have the congestion avoidance. So let us start ये क्या लेगा, स्लो स्टार्ट से लेगा, यानी कंजेशन विंडो की साइज़ क्या होगी, 1. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, सो 0 से 1 से 2, देन 2 से 4, एंड देन 4 से 8. 8 पे आने के बाद एन इवेंट अकर एंड द इवेंट इज टाइम आउट, एंड टाइम आउट मीन कंजेशन इन द नेटवर्क which is different from 3 duplicate acknowledgements. So इस केस में the operation is same like the previous case. दो काम इसने करना होंगे. पहला काम, it will start again slow start. Slow start में congestion window की size क्या रखेगा, ये 1. दूसरा काम ये क्या करेगा, थ्रेशहोल्ड वैल्यू को डिफाइन करेगा. इन दिस केस द करंट वैल्यू जहाँ पे टाइम आउट इवेंट अकर हुआ था, दैट इज 8. सो 8 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 4. सो द न्यू थ्रेशहोल्ड वैल्यू इज 4. दोनों काम इसने कर लिए. सो नाउ स्लो स्टार्ट अगेन 1 से ये स्टार्ट लेगा, एंड देन 2 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, देन 4. अब जैसे ही ये अपने थ्रेशहोल्ड वैल्यू अपर लिमिट तक पहुंचता है तो ये चेंज करता है अपने एल्गोरिथम को या अपने स्टेट को.
यहाँ तक ये फॉलो कर रहा था स्लो स्टार्ट को। अब ये क्या करेगा, कंजेशन एवॉइडेंस स्टेट पे आएगा, यानी एक्सपोनेंशियल से एडिटिव इंक्रीज पे आएगा। सो नाउ यू हैव 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9, then 10, 11 and then 12. अब इस पॉइंट पे another event occur, and now the event is it has received 3 duplicate acknowledgements, which is an indication that congestion in the network has been occurred. However, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस एल्गोरिथम रीनो के लिए टाइम आउट इवेंट इज डिफरेंट फ्रॉम 3 duplicate acknowledgement event. Both are indication of the congestions. However, ये जो congestions हैं it is different from the timeout. Timeout की वजह से अगर congestion अगर हो जाए तो क्या करेगा, ये स्लो स्टेट पे आएगा अगेन। लेकिन इस केस में ये क्या कर रहा है, ये स्लो पे नहीं आ रहा, ये ये कहाँ पे आएगा, अब फास्ट रिकवरी पे आएगा, विच इज़ द न्यू एल्गोरिथम। ठीक है, उसमें ये 2 काम करेगा। पहला काम क्या करेगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू को डिफाइन करेगा। सो द न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज, जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज 12, उसको 2 पे डिवाइड करो, यू विल गेट 6। सो दिस इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू दैट इज 6। दूसरा काम, अब ये स्टार्ट जो है यहाँ से नहीं लेगा लाइक दिस कि कंजेशन विंडो की साइज को 1 कर लो, नो ये क्या करेगा, कंजेशन विंडो की साइज को डिफाइन करेगा विद न्यू वैल्यू। लेकिन वो वैल्यू क्या होगी, जो करंट थ्रेशोल्ड वैल्यू है दैट इज 6, उसके साथ 3 को ऐड करेगा। 6 + 3 इज 9। सो द साइज ऑफ द कंजेशन विंडो हियर इज 9। ठीक है, और फास्ट रिकवरी है, सो 9 दैट इज आल्सो एडिटिव इंक्रीज 10, sorry, exponential increase 10 and then 12. Now new acknowledgement, जैसे ही new acknowledgement मिल जाए, it will again change its state from fast recovery to congestion avoidance. 2 काम करेगा, threshold value को define करेगा, 12 divided by 2 is 6, so the new threshold value is 6, and it will change its state from fast recovery to congestion avoidance. और कंजेशन अवॉइडेंस में ये दोबारा क्या करेगा, एडिटिव इंक्रीज पे आएगा। सो 6 then 7 then 8 then 9 then 10 then 11, it will continue there, right? So this is how the TCP Reno actually works in. So अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो जो मेन डिफरेंसेस हैं कि ये फास्ट रिकवरी को भी फॉलो करता है, और इसके अलावा इसके लिए टाइम आउट इवेंट and 3 duplicate acknowledgement, they are different events. टाइम आउट इवेंट के केस में ये स्लो स्टार्ट पे अगेन आएगा, जबकि 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट के केस में ये फास्ट रिकवरी मोड की तरफ जाएगा। एंड लास्टली वी हैव अनदर वर्जन ऑफ द TCP जिसको हम न्यू रीनो कहते हैं। इट इज़ एक्चुअली द लेटर वर्जन ऑफ TCP. Actually it try to add some extra optimization to the existing TCP Reno, यानी TCP Reno की परफॉर्मेंस को भी ये फर्दर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है। इस वर्जन में जो TCP है it actually checks to see if more than one segment is lost in the current window when 3 duplicate acknowledgement arrives and so on. So इसको I will leave it to you कि आप इसको फिर स्टडी कर ले, but that is not that much important. Okay, तो अगर आप इसको स्टडी करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ओके, फाइनली के आउट ऑफ द 3 वर्जन कौन सा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि रीनो वर्जन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टुडे। सॉरी, व्हाई इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, because it has been observed that in this version most of the time congestion is detected and take care of by observing the 3 duplicate acknowledgement. Even अगर कुछ time out event अगर हो जाए, TCP will able to recover from them by aggressive exponential growth. So this was about a review of the transport layer of the TCP IP. I hope कि आपने इस लेक्चर से कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में
we have a midterm exam, and after midterm exam we will continue our journey to the transport layer. हम बाद में जो हैं वो issues डिस्कस करेंगे एंड challenges को हम देखेंगे that we face while designing transport layer solutions for the mobile ad hoc network. And then we will jump to see some of the protocols that are available for the transport layer of a mobile ad hoc network. एंड देन उसके बाद हम जो हैं कुछ लेटेस्ट मोबाइल एड हॉक नेटवर्क्स के बारे में देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वानेट है, फानेट है, अपॉर्चुनिस्टिक नेटवर्क्स हैं, मेश नेटवर्क्स वगैरह, उनके बारे में हम जो है वो एक्सप्लोर करेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, इमर्जिंग नेटवर्क्स विच आर सब कैटेगरीज ऑफ मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, उसके बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे. ओके, इंशाल्लाह next week तो नहीं, but I will leave some announcement in the coming week regarding examination कि आप लोगों का जो मिड टर्म एग्ज़ाम है, चूँकि फ़िज़िकल एग्ज़ाम तो पॉसिबल नहीं है, so we will try to take examination in some other forms, and that is going to be, हो सकता है कि जो आप लोग का एग्ज़ाम हो वो ओपन बुक हो, या हो सकता है कि आप लोगों को कोई मिनी प्रोजेक्ट्स दिए जाएं एंड उसको हम कंसिडर करें एज अ मिड टर्म पेपर. सो इट वाज अबाउट टुडे लेक्चर. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.